Hello, children. Good morning. Once again, welcome back to our St. Thomas video classes. After long break of moral science period, today we are going to start Unit 5. Service is sacred. We already know about service. Service means सेवा, जो हम करते हैं. In Christian, service means religious method. Okay? So, service is sacred. Sacred means pavitra, dharmik, religious, devout, divine. Understand बच्चे? Angel. We many times use this word. Little angel. ભગવાનનું એક પવિત્ર આત્મા, પાત્ર, character. Understand? Service is sacred. We all are happy to serve God. In our home also, our grandparents always serving the God. We also bow down, no, pray to God. This is a one type of service to God. Understand? But how can we serve God who is invisible? Here we understand about how can we serve God who is invisible, जो हम उसको देख नहीं सकते. But in our present, our parents is a visible God. Understand now? Do you know that the most beautiful living, breathing temple of God is you and I? Yes, man himself. We are God only. Living temple, breathing temple of God. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna often says that divinity lives in every single person. Do you aware about now Bhagavad Gita? Hindu holy book of Hindus. Bhagavad Gita, Mahabharat. Understand? Yes. Lord Krishna often says that divinity lives in every single person. Therefore, to love and serve man is to love and serve God himself. हम क्या किया वो बोला है वो भगवत गीता में? To love and serve man is to love and serve God himself. मानस की हेल्प करो. We have to help each other. It's a one type of serving God. The Bible says that God made man in his own image. Do you know about Bible? It's a holy book of Christian. What it said? God made man in his own image. जो हमारी इमेज होती है उसमें ही गॉड है. He did this for us to remember him in every person we see. हम जो दूसरों को देखते हैं, दूसरे लोगों में देखते हैं, वही गॉड है. And to remind us that whatever service we do is service to him. जो हम करते हैं वो दूसरों के लिए भी की जा सके. Divinity is every one of us. हमारे सभी में मानवता, धार्मिकता, पवित्रता होनी चाहिए. Every one of us is a temple of God. हमारे एक एक में भगवान रहता है बोले. So to serve each other is the most wonderful way to serve God. क्या बोलते?
टू सर्व ईच अदर, हम एक दूसरे को की सेवा करनी चाहिए। इज द मोस्ट वंडरफुल वे टू सर्व गॉड, वो भगवान की सेवा करने के बराबर है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Mrs. Rao was a very pious lady. Here one story about a lady, Mrs. Rao. Very pious. Pious means daya bhav wali, kindness. One day, in the midst of her prayer, she heard the divine voice. जब वो प्रेयर कर रही थी तब उसको एक आवाज सुनाई दी। Today before midnight I will come to your house. क्या वो वॉइस में सुनाई दिया कि आज मिडनाइट को, आधी रात को मैं आपके घर आऊँगा। I will come. She was very excited and happy. कोई भी गेस्ट हमारे घर आ रहा है तो हमको बहुत खुशी होती है। ऐसे ही she said to herself, yes, today my God will come to my house. गेस्ट की जगह तो कौन आ रहा था? गॉड. So she excited and happy also. And she said to herself, today my God will come to my house. Well, he has to find my house in perfect order, neat and clean, spick and span. देखो कैसा बोले कि मेरा घर गॉड को परफेक्ट लगा। क्यों? बिकॉज नीट एंड क्लीन, जहाँ क्लीनलीनेस होती है उधर ही भगवान का वास होता है, उधर ही भगवान रहते हैं। भगवान को अच्छा लगता है गॉड को। सी कॉल्ड हर प्लम्बर टू रिपेयर द टैप्स. In the process of repairing, the whole house got flooded and became an untidy mess. Mrs. Rao was furious and asked him to finish the work quickly. उसके हाउस में जो टैप टपक रहा था उससे पूरा हाउस फ्लडेड हो गया था, पूर जैसा हो गया था। तो उसने पहले किसको बुलाया? प्लम्बर। Those who repair the tap, and she asked him to finish the work quickly. जल्दी काम खत्म कर दो, मेरे घर गॉड आ रहे हैं। She was very excited. The plumber left and Mrs. Rao began mopping the floor. जो प्लम्बर गया घर छोड़ के रिपेयर करके, उसने तो सब मॉपिंग करना शुरू कर दिया। Just then her neighbor rang the door bell and got in. जब भी वो काम कर रही तब किसने डोर बेल बजाई और नेबर उसके आए। She said to her, you are very busy getting the house ready for a very important guest. तुम तो बहुत काम में लग रही हो। बोले कोई आपके घर आने वाला है। मे आई हेल्प यू? आई कैन एंटरटेन योर गेस्ट टू. क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ? मैं आपके गेस्ट को खुश करूँगा, एंटरटेन, हैप्पी करूँगा। मिसिस राव आंसर्ड, नो, नॉट एट ऑल. आई कैन मैनेज माई वर्क अलोन. मैं अकेले ही मेरा सब घर मैनेज कर लूँगी, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। प्रीटी वेल सी लेफ्ट दी हाउस. वो गेस्ट तो चली गई। A few minutes later, someone again knocked at the door. और थोड़ी देर के बाद दूसरा कोई ने डोर नॉक किया, खटखटाया। It wasn't the Lord, it was a salesman. કે છે કે મારા લॉर्ड, મારા ભગવાન નથી. It wasn't the God, Lord. It was a salesman, जो कुछ बेचता है ना वो. He said, I sell beautiful carpets. I can sell you one.
मैं बहुत अच्छी कारपेट जो हम घर पे बिछाते हैं ना फ्लोर पे, वो बेच रहा हूँ। क्या आपको चाहिए? दैट विल प्लीज योर गेस्ट। बोले आपके जो घर में गेस्ट आ रहे हैं उसके लिए मैं कारपेट दे रहा हूँ। इन एंगर मिसेस राव साउटेड एट हिम, नो नो, डू नॉट नीड एनी कारपेट्स। आई डू नॉट नीड, मेरे किसी कारपेट की जरूरत नहीं है। प्लीज गो एंड लीव मी इन पीस। आप जाओ, मेरे को शांति से काम करने दो। विथ मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ रैग and determination, she continued her household chores. Again another bell. वो अपने हिसाब से उसका घर काम काज कर रही थी, कंटिन्यू। एंड अगेन अनदर बेल, समवन rang. She said to herself, will it be the Lord? હવે તો ચોક્કસ મારા ભગવાન આવ્યા હશે. Her good neighbor stood at the doorstep in tears and said, उसके अच्छे वाले जो पास वाले पड़ोसी थे वो डोरस्टेप घर के आगे खड़े थे और रो रहे थे, टीयर्स विथ आंसू। प्लीज मिसेस राव कम विथ मी टू द हॉस्पिटल। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो ना। Just now I got a call that my little son Amit met with an accident and is hospitalized. आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मेरा छोटा बच्चा अमित को अभी एक्सीडेंट हुआ है और उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना है। मिसिस राव सेड, I have no time. I am waiting for an important guest. And she closed the door. उसने उसको भी वापिस भगा दिया और क्लोज कर दिए डोर। बाय इवनिंग मिसिस राव वॉज रेडी टू रिसीव हर गॉड। शी सैट डाउन एंड प्रेड, नाउ यू कैन कम लॉर्ड, आई एम रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। अभी तो शाम हो गई और वो तो गॉड का वेट कर रही थी। बोले मैंने सब काम बता दिए है, आप जल्दी आओ, अभी एवरीथिंग इज रेडी, सब तैयार है। डू कम लॉर्ड, आई लॉन्ग फॉर योर विजिट, मैं कितनी देर से आपकी वेट कर रही हूँ। द क्लॉक टिक्ड ऑन, द मिनट्स रोल्ड बाय, सून इट बिकेम 11 PM। रात के 11 बज गए थे, क्लॉक तो अपने हिसाब से चल रही थी। मिसिस राव गॉट अलार्म्ड एंड प्रेड, डू कम कम सुन लॉर्ड, लॉर्ड आई एम वेटिंग। वो तो भगवान को प्रे ही कर रही थी कि आप जल्दी आओ, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। द क्लॉक स्ट्रक 12 midnight, और 12 बजे क्लॉक अटक गई, रुक गई। मिसिस राव ब्रॉक इनटू टीयर्स, वो तो रोने लगी, बिकॉज सी ईगर टू मीट द गॉड। उसको इनवाइट करना था, वो उसके लिए ईगर थी। सो सी हर्ड द वॉइस अगेन, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। क्या वॉइस सुनाई दिया? देखो कि आप मैन मीन्स मानस की हेल्प करो, वो गॉड की सर्विस बराबर है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ मैन इन हिज लाइफ इज सर्विस टू फेलो ह्यूमन बीइंग्स। फेलो मीन्स व्यक्ति, कोई पीपल। वो बोले हमारी इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग, जो हमारे आसपास लोग हैं, पीपल, उसकी हम हेल्प करें, उसकी सेवा करें। वी शुड सर्व द पीपल हु आर इन नीड, जो जिसको ज़रूरत है हम उसको हेल्प करें। बिकॉज ट्रू जॉय इज़ द नेचुरल रिवॉर्ड ऑफ ए पर्सन हु लव्स अदर।
वो हमारा पहला रिवॉर्ड है। जॉयफुल, जॉय, हैप्पीनेस, कुदरती हमारा जो रिवॉर्ड है कुदरत का, भगवान का, वो क्या है? हु लव्स अदर्स। हम दूसरों को प्यार देना चाहिए, दूसरों को प्यार जताना चाहिए। द मोर यू लव द लार्जर योर हार्ट ग्रोज। हम दूसरों को लव करेंगे तो हमारा हार्ट, दिल से हम ज़्यादा खुशी पाएंगे। द मोर हैप्पीनेस इट कैन होल्ड। ज़्यादा हम खुशी होल्ड कर सकेंगे। गॉड इज एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। Therefore, so we show others and make them happy. God is everywhere. सभी जगह गॉड है। इन ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, सभी में गॉड है। Therefore, we serve others and make them happy. We also make God happy and so we can say service is sacred. So we can say service is sacred. हमको सभी को हेल्प करनी चाहिए। God is everywhere in each and every living being. Therefore, when we serve others and make them happy, we also make God happy and serve Him. So we can say service is sacred. We should carefully select whom to serve. We can try to make everyone around us happy by being nice to all. But keep service for those who most need it. जिसको ज़्यादा ज़रूरत उसको हेल्प करते रहो बोले। In our Indian culture, any visitor to the house is treated as one would treat God. ये हमारा इंडिया कल्चर में क्या है? इंडियन कल्चर में कि जो हमारे घर गेस्ट एज ए गेस्ट आते हैं तो हम उसकी बहुत सर्विस करते हैं, अच्छे से हम उसको इनवाइट करते हैं, रिसीव करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव। क्या है वो? भगवान का स्वरूप है। Because God can visit us in any form and at any time. भगवान हमारे घर पे किसी के रूप से आते हैं, किसी भी तरह आते हैं। We should always be ready to serve. हमेशा हम उसकी राह देखनी चाहिए, हम उसको रेडी रहना चाहिए सर्विंग के लिए। God gives a chance to every want to serve others. भगवान हम सभी को चांस देते हैं सभी की सर्विस करने के लिए। We should never let go of such a chance because a lost chance is lost forever. जो हम अपॉर्चुनिटी, हम चांस गुमा देते हैं, लॉस कर देते हैं, तो वो कभी वापस आती नहीं है। Lost chance is lost forever. While each chance to serve, जब भी हमको चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए और कैच कर लेनी चाहिए और अपनी सेवा अविरत करनी ही चाहिए। If used well is a great joy. हमको बहुत खुशी मिलती है, हमारी दिल में बहुत खुशी मिलती है। सर्विस टू द पुअर एंड नीडी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सर्व गॉड। जिसको ज़रूरत है हम उसको सेवा करनी चाहिए हमको।
To serve each other is the most wonderful way to serve God. जो हम अपने ह्यूमन बीइंग की सेवा करेंगे तो डायरेक्टली गॉड खुश हो जाएंगे और उसकी सर्विस हो जाएगी. वंडरफुल वे टू सर्व ગોડ. સો બચ્ચે સેવા એ જ અમારું જીવન એ મનમાં ઉતારી લો અને જેને પણ જ્યારે પણ જરૂર હોય ત્યારે સેવા કરતા રહો. સો બચ્ચે વી ફિનિશ્ડ અવર લેસન. સર્વિસ ઇઝ સેકર્ડ. In next video we will see chapter 6 and I send PDF with our next video together chapter 5 and chapter 6. Okay बच्चे, take care, stay home, stay safe. Thank you.